Today we will see how to build a decision tree from the given data set and the steps to build that decision tree. Okay, so this is the data set given. So from the given data set, first step is that we have to find out the target attribute, or we have to choose the target attribute. Okay, so first step is what? Selection of target attribute. So here we are selecting target attribute as the profit. Okay, now what is the second step then? First step is choose the target attribute. So we have chosen the target attribute as the profit. Okay, so second step is we have to find out the information gain of the target attribute. Okay, so how to find out the information gain? That is using this formula. Okay, so what is this formula? Information gain is equals to minus p divided by p plus n multiplied by log to p divided by p plus n minus n divided by p plus n log to n divided by p plus n. What is this p and n? That we will see later on. Okay, so this is the second step. We have to find out the information gain of the target attribute. Now third is that we have to find out the entropy of each and every attribute. Okay, so how we can find out the entropy of each and every attribute? That is, entropy of the attribute is nothing but this. Using this formula we can find out. Now what is this formula? This is nothing but the information gain multiplied by the probability of that particular attribute. So this is how we can find out the entropy of particular attribute. Okay, so we have to find out entropy for each and every attribute of our data set. So we are having 3 attributes, so we have to find out the entropy for 3 attributes using this formula, that is information gain multiplied by probability of that attribute. So this formula is like this. Okay, now fourth we have to find out the gain of that particular attribute. Okay, so gain, how we can find out the gain? Gain is equals to information gain of the target attribute minus entropy of that given attribute. So like this we can find out the gain. Okay, so abhi gain is very important. Gain plays very important role. So जिसका भी gain सबसे ज़्यादा होगा, जिस attribute का gain सबसे ज़्यादा होगा, that attribute we can select as the root attribute of the decision tree, or that attribute we can consider as the root of the decision tree. Final decision tree का उसको हम लोग क्या चूज़ करेंगे? रूट चूज़ करेंगे. सो जिसका भी गेन, जिस एट्रीब्यूट का गेन सबसे ज़्यादा होगा, दैट एट्रीब्यूट वी कैन कंसीडर एज द रूट ऑफ द फाइनल डिसीजन ट्री. ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो. ठीक है, सो अभी फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने टारगेट एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन्फॉर्मेशन गेन. सो हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट का इन्फॉर्मेशन गेन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे P हम लोग कंसीडर करेंगे डाउन एंड N कंसीडर करेंगे अप. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? कि यहाँ पे प्रॉफिट के कितने वेरिएंट्स है? 2 वेरिएंट्स है, दैट इज़ डाउन एंड अप. तो इसीलिए P हमने क्या कंसीडर किए? डाउन, कि कितने बार डाउन है, और अप क्या कंसीडर किए? कितने बार अप है. Right, so here 10 entries are there in this data set. Okay, so here we are considering P divided by P plus N. Right, so P is what? कितने बार डाउन है? 1 2 3 4 5 बार. राइट, सो 5 डिवाइडेड बाय P प्लस N. सो P 5 टाइम्स डाउन है, N भी 5 टाइम्स अप है. राइट, सो P प्लस N की वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस 5 दैट इज 10. सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? 5 डिवाइडेड बाय 10 लॉग टू 5 डिवाइडेड बाय 10. नाउ यहाँ पे प्लस लिया बिकॉज माइनस हमने क्या लिया? कॉमन लिया फ्रॉम दैट particular formula. Okay, so what is the value of this? This can be 5 divided by 10 means 0.5 multiplied by log 2 raised to power 1. सो 2 raised to power 1. ठीक है, सो यहाँ पे भी 2 raised to power 1. सो 2 raised to power 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 कॉमन में जाएगा, log 2 2, -1 कॉमन में log 2
2. So what is the meaning of this? So this is nothing but the value of this becomes log 2 is what? 1, right? So 1 multiplied by 1 becomes 1. So 0.5 multiplied by 1 becomes 0.5, right? So 0.5, this minus gets over here, so minus 0.5 हो जाएगा, right? So अभी ये क्या हो गया? So 0.5 minus 0.5, sorry, plus 0.5 plus 0.5 becomes 1, राइट. सो माइनस फिर से हमने इन दोनों में से माइनस फिर से कॉमन लिया बिकॉज यहाँ पे -1 है. सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 0.5 एंड माइनस 0.5 ऐसे हो जाएगा. तो माइनस कॉमन लिया, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस. तो ये क्या हो गया? 1 हो गया. सो इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट क्या निकला हमारा? 1 निकला. क्लियर? अभी ये हो गया. अभी थर्ड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप हो गई कंप्लीट, हमारी इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट निकाला. अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना है? एंट्रोपी ऑफ एवरी एट्रीब्यूट निकालनी है. तो हम लोग फर्स्ट एट्रीब्यूट कंसीडर करेंगे एज टू फाइंड आउट द एंट्रोपी. ठीक है. तो अभी एज एट्रीब्यूट हमने कंसीडर किया. नाउ एज एट्रीब्यूट जब कंसीडर करेंगे तो उसको अभी रोज एंड कॉलम में कैसे ड्रॉ करेंगे? सो कॉलम में हम लोग कंसीडर करेंगे पॉसिबल आउटकम ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट. सो व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट? दैट इज डाउन एंड अप, राइट. सो इसीलिए डाउन एंड अप कंसीडर किया. क्लियर? एंड कॉलम में हम लोग क्या कंसीडर, सॉरी रोज में क्या कंसीडर करेंगे? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट. सो पॉसिबल आउटकम ऑफ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट क्या है? ओल्ड, मिड एंड न्यू, राइट. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट. ठीक है. तो ऐसे रो एंड कॉलम एंड रो हम लोग कंसीडर करेंगे. अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं. सपोज ओल्ड है एंड डाउन है. ठीक है. ओल्ड एंड डाउन. सो ओल्ड कितने टाइम्स डाउन है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो ओल्ड कितने टाइम्स डाउन है? कितने ओल्ड है? 3 ओल्ड है. हर एक ओल्ड के लिए ये क्या है? प्रॉफिट डाउन है, मीन्स 3, राइट. सो 3 हो गया. सो 3, राइट. ओके. सो सेम ओल्ड के लिए अप कितने बार है? सो ओल्ड के लिए अप है क्या? ओल्ड यहीं पे है तो डाउन ही है सिर्फ. अप है क्या उसके लिए? नहीं है. सो क्या हो गया? उसकी वैल्यू 0 हो गई, राइट. सेम मिड डाउन कितने बार है? सो मिड कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4. सो कितने बार डाउन है? 2 बार डाउन है और 2 बार अप है. तो इसीलिए 2 आ गए, राइट. सेम न्यू के लिए निकालेंगे तो न्यू डाउन कितने बार है? 0 और अप कितने बार है? 3. क्लियर? ये हो गया. उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसका इंफॉर्मेशन गेन, राइट. सो इन्फॉर्मेशन गेन फिर से निकालना है हर एक एट्रीब्यूट के लिए. सो इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकलेगा? पहले ओल्ड के लिए निकालेंगे, देन मिड के लिए, देन न्यू के लिए. सो फर्स्ट किसके लिए निकालेंगे? इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ ओल्ड. तो यहाँ पे पी क्या है? अभी पी मीन्स डाउन एंड एन मीन्स अप. ठीक है. सो पी डाउन है तो डाउन कितने बार है हमारे पास? ओल्ड डाउन कितने बार है? सो 3 बार है, राइट. सो इसीलिए 3. सो 3 डिवाइडेड बाय 3 क्यों आया अभी? क्योंकि हमारे डेटा सेट में ओल्ड कितने बार ऑकर हुआ है? 3 टाइम्स. तो इसीलिए ये क्या आया हमारा? 3 डिवाइडेड बाय 3. log 2 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अभी अप कितने बार है? 0 टाइम्स. सो 0 डिवाइडेड बाय 3 log 2 0 भी डिवाइडेड बाय 3. सो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्लियर? नाउ सेम इंफॉर्मेशन गेन ऑफ मिड निकालेंगे. तो मिड इज इक्वल्स टू, अभी मिड की वैल्यू क्या है? अप की 2 है, राइट. सो 2 डिवाइडेड बाय मिड कितने बार ऑकर हुआ है? 1 2 3 4. सो इसीलिए क्या आया? 2 डिवाइडेड बाय 4 log 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अब भी कितने बार है? 2. सो 2 डिवाइडेड बाय 4 log 2 डिवाइडेड बाय 4. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. सेम इन्फॉर्मेशन गेन फॉर न्यू निकालेंगे हम लोग. उसमें अब कितने डाउन कितने बार है? 0 डिवाइडेड बाय 3, राइट. सो और क्योंकि न्यू 3 टाइम्स ऑकर हुआ है और 2 डिवाइडेड बाय 3 उसकी वैल्यू क्या आती है? 0. ठीक है. उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसका
एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, राइट। गेन निकाल दिया हमने, अभी उसकी क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है। तो एंट्रोपी क्या है, इन्फॉर्मेशन गेन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एट्रीब्यूट, राइट। सो इन्फॉर्मेशन गेन हमने निकाला है यहाँ पे, राइट। सो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी यहीं पे कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या है, उसका ऑकरेंस, राइट। तो ओल्ड कितने बार ऑकर हुआ है हमारे डेटा सेट में, 3 बार। टोटल एंट्रीज कितने, 10। सो कितने हो गए, 3 डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स 0। सेम मिड कितने बार ऑकर हुआ है, 4। सो 4 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, राइट। सो 0.4। न्यू कितने बार ऑकर हुआ है, 3 बार। सो 3 डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स 0, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। और उसके बाद हमें एंट्रोपी ऑफ एज निकालना है। सो इसका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एंट्रोपी ऑफ एज, राइट। सो एंट्रोपी ऑफ एज इज व्हाट, एडिशन ऑफ दिस दैट इज 0.4। एंट्रोपी निकाल दिया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, गेन। सो गेन कैसे निकालेंगे, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट माइनस एंट्रोपी ऑफ गिवन एट्रीब्यूट, राइट। सो वो कैसे निकालेंगे, गेन इज इक्वल्स टू इन्फॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी। तो इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट कितना निकला था हमारा, 1 माइनस एज, एंट्रोपी ऑफ दिस एज कितना निकाला है, 0.4। सो व्हाट इज द गेन ऑफ एज, दैट इज 0.6। क्लियर। सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया गेन ऑफ एज एट्रीब्यूट। सेम वे से हमें क्या निकालना है, गेन ऑफ कंपटीशन एट्रीब्यूट एंड टाइप एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट से तीनों एट्रीब्यूट के गेन हमें है, तो हमने एज का निकाला है। उसके बाद किसका निकालना है, हमें कंपटीशन का निकालना है, टाइप का निकालना है, ठीक है। तो सेम वे से हमें निकालना है कंपटीशन का एंड टाइप का। तो कंपटीशन का गेन आता है हमारा 0.124, गेन का टाइप का गेन आता है 0, ठीक है। और हमारा टारगेट एट्रीब्यूट का इन्फॉर्मेशन गेन क्या है, 1 है। तो इसके ऊपर से हम लोग क्या निकालेंगे, अभी डिसीजन ट्री निकालेंगे, ठीक है। सो डिसीजन ट्री में रूट नोड कौन सा होता है, एज वी सॉ कि जिसकी भी गेन ज़्यादा है, जिस एट्रीब्यूट का गेन सबसे ज़्यादा है, दैट विल बी कंसिडर एज द रूट एट्रीब्यूट। तो किसका गेन सबसे ज़्यादा है, दैट इज गेन ऑफ एज इज मोर, राइट। सो एज का गेन कितना आया था, दैट इज 0.6, ठीक है। तो किसका गेन सबसे ज़्यादा है, एज का। सो एज हमने एट्रीब्यूट कंसीडर किया एज द रूट नोड ऑफ द डिसीजन ट्री, ठीक है। अभी एज इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज ओल्ड, मिड एंड न्यू। क्यों ये 3 इसमें डिवाइड किए, क्योंकि हमारा जो एज कॉलम है फ्रॉम द डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू 3 वेरिएंट्स, दैट इज ओल्ड, मिड एंड न्यू। इसीलिए हमने इसे डिवाइड किया 3 वेरिएंट्स में, ठीक है। नाउ अभी इसमें देखेंगे हम लोग कि ओल्ड एंड न्यू को हमने डायरेक्टली डाउन एंड अप क्लास लेवल दे दिए और मिड को नहीं दिया, ठीक है। तो अभी ये क्यों दिए, तो सी हियर कि ओल्ड अगर हम लोग कंसिडर करते 3 ओल्ड है, तो वो तीनों ओल्ड डाउन है, तीनों ओल्ड क्या है, डाउन है उसका क्लास लेवल, राइट, यस और नो। तीनों ओल्ड के लिए क्या है, डाउन है, राइट। तो इसीलिए हमने उसका क्लास लेवल क्या लिया, डाउन लिया। क्लियर, मीन्स एज अगर ओल्ड है तो डाउन, प्रॉफिट इज डाउन, ठीक है। सेम अगर न्यू लेते हैं तो 3 न्यू है हमारे पास, तीनों न्यू के लिए क्या है, अप है, प्रॉफिट क्या है, अप है। सो इसीलिए हमने क्लास लेवल क्या दिया, अप लिया, ठीक है। नाउ अगर मिड कंसीडर करते हो, सो मिड कंसीडर करते हो, हमारे पास ये 4 मिड है। तो 4 मिड के लिए देखो, 2 मिड के लिए डाउन है और 2 मिड के लिए अप है। तो अगर ऐसी केस आती है तो वी हैव टू कंसीडर द नेक्स्ट एट्रीब्यूट फॉर द डिसीजन, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट फॉर द डिसीजन कैसे नहीं लेंगे हम लोग, तो जिसका भी इंफॉर्मेशन गेन जिसका भी ज़्यादा है, ठीक है, मीन्स इससे कम बट ज़्यादा है, वो हम लोग नेक्स्ट डिसीजन एट्रीब्यूट कंसीडर करेंगे। तो किसका है, कंपटीशन का। तो इसीलिए नेक्स्ट डिसीजन एट्रीब्यूट हमने क्या कंसीडर किया, दैट इज़ द कंपटीशन, ठीक है। सो अभी क्या कंपटीशन के वेरिएंट्स क्या है, यस एंड नो है, राइट। नाउ कंपटीशन के वेरिएंट्स क्या है, यस एंड नो। नाउ सी हियर, मिड अगर यस है, दोनों भी यस है, तो ये प्रॉफिट क्या है, दोनों इसके लिए डाउन है। तो इसीलिए एस के लिए हमने क्या लिया, डाउन। सेम मिड
अगर नो है, मिड है लेकिन नो अगर कंसिडर करते तो 2 नो है, तो दोनों नो के लिए अप है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, अप कंसिडर किया। क्लियर। नाउ अभी थर्ड जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऐसे होता था कि कंपटीशन यस है और कंपटीशन मिड के लिए यस है और यहाँ पे डाउन है, लेकिन मिड के लिए यहाँ पे यस है लेकिन यहाँ पे नो है, एट दैट टाइम हमें थर्ड एट्रीब्यूट भी कंसिडर करने की ज़रूरत होती थी। लेकिन यहाँ पे हमें क्लास लेवल मिल गए सभी के लिए, इसीलिए थर्ड एट्रीब्यूट डिसीजन ट्री में कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री फॉर द गिवन डेटा सेट। Okay, so this is the very common example used asked in the question or asked in the university question paper. Okay, so lastly, if you really like my video, if you like my explanation, if you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.